when to marry, whom to marry, how to manage married life. Let's say family planning, planning kids, planning businesses together, how to identify when is the right time to marry. इस समय को रहने दीजिए, यहाँ पे आप मैट्रिमोनियल डिसीजन लेंगे वो अशुभ रहेगा। तीसरी अशुभ विंडो आती ही है जब आप 35 साल के होते हो। सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि आपके लिए ये समय शुभ है या नहीं। कंपैटिबिलिटी तो बहुत अच्छी है जी, पर लड़के की कुंडली में शादी का योग नहीं है। आपकी कंपैटिबिलिटी कितनी है, वो 36 गुण मैच करवाना। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट मैरिज इज। जो प्रेम भाव है इसे आप 5 साल के लिए चेक करें। फ्रेंड है, आप उनको बड़ा प्यार करती हैं, आप टू बेस्ट फ्रेंड्स आर ऑफन नॉट good flatmates. Yes. Spouse should be able to contribute in better old age of the parents. Matrimonial institution is made for the family. ने बहुत बार मेंशन किया प्रेम भाव, लव। जी, व्हाट इज लव सर? जैसे ही हमारा जन्म होता है हमारी माँ हमसे प्रेम कर लेती है। व्हाट इफ पीपल आर मैरिड बट दे डोंट वांट टू हैव अ बेबी? They did not need to marry, then why did they marry? कुंडली मिलाने में कुछ रेमेडीज भी होती हैं। रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये बहुत लाइफ के क्रिटिकल डिसीजंस हैं। यूट्यूब एस्ट्रोलॉजर वगैरह से ना करें। आई वांट टू नो कि क्या फ्रेंड्स भी स्पाउस हो सकते हैं? उस केस में भी कुंडली मिलाना इज इम्पोर्टेंट। नमस्कार। मैरिज, रोमांटिक लाइफ, कंपेनियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ में भी आई थिंक प्रोफेशनल लाइफ से ऊपर ही है ये। कंपेनियन वी चूज, आवर मैरिड लाइफ, आवर फैमिली लाइफ, इसका जो इम्पैक्ट हमारे ओवरऑल जीवन पे आता है ये इसके आसपास भी कोई और इम्पैक्ट नहीं होता। आज मैं और सिमरन एस्ट्रोलॉजिकली योर्स पर मैरिड लाइफ, रोमांटिक लाइफ और इसमें ज्योतिष का क्या महत्व है या क्या रोल है, इसके ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे। शादी एक ऐसा टॉपिक है जो लोगों के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, और आपका स्पाउस चूज करना इज द ओनली डिसीजन यू कैन टेक इन योर लाइफ। आप पेरेंट्स नहीं चूज कर सकते हो, अपने फैमिली मेंबर्स नहीं चूज कर सकते हो, लेकिन स्पाउस आप चूज कर सकते हो। करेक्ट स्पाउस को कैसे चूज करें, कब चूज करें, और फैमिली प्लानिंग के बारे में हम आज का एपिसोड बेस करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी का जो विजडम ऑफ एस्ट्रोलॉजी है उसका यूसेज मैरिज में क्या है, आज एपिसोड उस बारे में है। वेदर यू आर सिंगल, एंगेज्ड और मैरिड, दिस डिस्कशन इज फॉर यू। लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन विद एस्ट्रोलॉजर रोहित आश्व त्रिवेदी। सर, आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करना चाहते हैं एक कोर क्वेश्चन से। व्हाट इज द रोल ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन मैरिज? See, astrology plays a very significant role in our life. Marriage is a very important aspect of our life. Thus, astrology's role in marriages or married life is also super significant. Now, let's say put a structure to our discussion because it's such a broad topic. It is such a broad topic that we can do 10-15 episodes like this on marriage and astrology alone. Just to put little context or little structure to the discussion which we will have, let's break it down into few steps. First, when to marry. Of course, we are identifying astrological answers and analysis for when to marry first. Second, whom to marry. Third, how to manage married life. In the first part, we do astrological analysis in identifying the correct time to marry. In the second part, we will do astrological discussion on how astrology can be used to identify compatibility of two individuals or how to identify whom to marry. And then we will talk about how astrology is further used in management of a married life. Let's say family planning, planning kids, planning businesses together, solving any problem in the marital alliance. There may be cohabitation issues, there may be some emotional or family related issues ongoing in a romantic life or a married life, how to handle those issues with deployment of remedial astrology. So, if you allow me, so we should start with our discussion and let's talk about how to identify when is the right time to marry. See, right time to marriage is a very individualistic question which a person needs to answer himself or herself. Astrology can give you very accurate understanding of your own state of life.
Logic says that a person should marry when the person is emotionally, socially, financially prepared for marriage, prepared for social, emotional responsibilities, right? So, astrologically, we check the same but by mathematics, by stars. हुँ, नॉट बाय कि हाँ हमें तो अक्लमंद लग रहा है, हाँ बड़ा हो गया, नहीं, हम गणित, हम मैथ से चेक करेंगे। लेट्स से a person is going through extremely inauspicious circumstances, let's say कोई मकर लग्न की कुंडली है और वो अभी गुरु और मंगल की अशुभ दशाओं में चल रहे हैं, लग्नेश अशुभ गोचर में है, हुँ, भाग्येश भी शत्रु क्षेत्र में है या पीड़ा के अंदर है, अभी से लेकर अगले 1.5-2 साल तक। हुँ, तो ये समय शादी करने के लिए ही अशुभ है। इट डज़न्ट मैटर आप किससे शादी कर रहे हो। हुँ, हुँ, इफ यू आर गोइंग थ्रू इनऑस्पिशियस टाइम पीरियड, इट इज़ not advisable for a person to even contemplate or take a decision on matrimonial aspect. इस समय को रहने दीजिए। यहाँ पे आप जो भी रोमांटिक डिसीजन लेंगे या मैट्रिमोनियल डिसीजन लेंगे वो अशुभ रहेगा, इवन इफ इट इज विद द पर्सन विद whom यू आर कंपैटिबल। तो सबसे पहले हम एक आयु का चयन करना पड़ता है कि किसी कुंडली में ऐसा हो सकता है कि आपके लिए शुभ समय है 21 साल से 24 साल के बीच में शादी करना, फिर 28 साल से 30 साल के बीच में शादी करना। हुँ, किसी भी कारण से अगर इन दोनों टाइम विंडोज में शादी नहीं हुई, लेट्स से आप अपने प्रोफेशन में एकेडमिक्स में बिजी थे, आपका पर्सनल लाइफ डिसीजन था कि अभी शादी नहीं करनी, ये दोनों टाइम विंडोज मिस हो गई, तो अब तीसरी अशुभ विंडो आती ही है जब आप 35 साल के होते हो। अगले 2-3 साल तक अब दशाएँ अशुभ हैं, गोचर अशुभ है, आपका भाग्येश पीड़ा में है, आपका लग्नेश पीड़ा काल को अनुभव कर रहा है। अभी आप शादी करेंगे तो इट विल टर्न आउट टू बी अ डिज़ास्टर। हुँ, शादी केवल तब खराब नहीं होती जब 2 व्यक्तियों का आपसी मतभेद हो जाए। मान लीजिए किसी एक का स्वास्थ्य खराब हो गया, हुँ, किसी एक का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया, हुँ, शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो गया, तो भी वो शादी नहीं चल पाएगी। हुँ, यहाँ पर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के जीवन में मध्यम आयु का ही योग है। 2 इंडिविजुअल हैं, हुँ, दोनों को आपस में रोमांटिक अटैचमेंट है या परिवार ने शादी का प्रयोजन किया और एक व्यक्ति की आयु केवल मध्यम आयु है। ज्योतिषीय गणित से पता चल रहा है कि इस व्यक्ति के जीवन में केवल 12-13 वर्ष ही शेष रह गए हैं अब। हुँ, और जो दूसरा व्यक्ति है उसका हमें दीर्घायु दिख रही है, 70-80 वर्ष की आयु दिख रही है। हुँ, तो अब ये रिलेशनशिप ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं है। हुँ, ये है टाइमिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जी, हाँ, ये है टाइमिंग ऑफ मैरिज बाय एस्ट्रोलॉजी, द फर्स्ट एसेंशियल स्टेप। सबसे पहले हमें चेक करना होता है हुँ, कि आपके लिए ये समय शुभ है या नहीं। क्या आप इस समय अपने विवाह के लिए रिश्ते देखना शुरू करें या नहीं? अगर ये समय ही अशुभ है तो एन्जॉय योर सिंगलहुड। यहाँ पे शादी के बारे में ना सोचें, अगर ये अशुभ समय है 2-3 साल अब आप सिंगल रहें। जब समय शुभ आएगा, जो एक अच्छा ज्योतिषी आपको आपकी कुंडली देख के बता सकता है कि यहाँ से, जैसे फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, किसी कुंडली में हो सकता है कि जी इस साल नवरात्रों से दशहरा से आपकी कुंडली में शुभ समय है, अपने लिए रिश्ते देखना शुरू करें। मार्च अप्रैल 2026 में विवाह का योग आ जाएगा, तो आप यहाँ पे रिश्ता देखना शुरू कर लें। नेक्स्ट स्टेप आएगा किससे शादी करनी है, कंपैटिबिलिटी चेक करना। वो कब होगा? जब पहला चेक, ये टाइमिंग वाला चेक होने के बाद। ठीक है। वंस टाइमिंग चेक हैज बीन परफॉर्म्ड कि ठीक है ये समय आपके लिए शादी के लिए शुभ है, तब हम सेकंड स्टेप पे जाते हैं। हुँ, आमतौर पे क्या देखने को मिलता है हमें कि लोग कंपैटिबिलिटी चेक कराने के लिए पहले वही होता है। जी, 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 2 कुंडलियाँ लेकर आ जाते हैं कि पंडित जी बताओ इनकी कंपैटिबिलिटी कैसी है? कंपैटिबिलिटी तो बहुत अच्छी है जी, पर लड़के की कुंडली में शादी का योग नहीं है। हुँ, पहला स्टेप है ये चेक करना कि वर-वधू जब अपना इंडिविजुअल परसूवेंस शुरू कर रहे हैं, जी, उनकी कुंडली में शादी का शुभ योग है या नहीं। अब अगर मान लीजिए लव मैरिज है, लव मैरिज का मतलब है कि पंचम भाव जो है, प्रेम भाव है, हुँ, वो इस कपल के बीच में ऑलरेडी आ चुका है। अब जी, शादी से दाम्पत्य सप्तम भाव और नवम भाव आएगा। प्रेम भाव तो ऑलरेडी है लव मैरिज में। तो जब से उनका रिलेशनशिप शुरू हुआ, डेटिंग शुरू हुई, वहाँ से पंचम भाव शुरू हो गया। सप्तम और नवम अभी भी विवाह के बाद ही शुरू होगा। हुँ, हुँ, अब ये पंचम भाव अगर अशुभ समय में बीता हो या अशुभ समय में शुरू हुआ हो, तो इसको सप्तम भाव में परिवर्तित करना, विवाह में परिवर्तित करना, क्या उस समय इस जातक के लिए शुभ है? इसके लिए बड़ा गहन, बड़ा डिटेल्ड एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस होता है और वो प्योर मैथमेटिक्स है, कोई सब्जेक्टिविटी नहीं होती। हुँ,
जब ये चेक हो जाए कि हाँ, इस व्यक्ति के लिए समय शुभ है शादी करने का, तब हम रिश्ते देखना या चयन करना, सर्च अपनी शुरू करते हैं। फिर आते हैं हम सेकंड टॉपिक पे जी। कि अब किसके साथ शादी करें? आपकी कंपैटिबिलिटी कितनी है? वो 36 गुण मैच करवाना आपने सुना होगा, आम जी, तौर जी, पे जी। यूज़ करते हैं। बिल्कुल। वो बड़ा एक सुपरफिशियल हाँ, यू नो बेसिक सा चेक है, वो बहुत डिटेल या डेफिनिटिव कंक्लूसिव चेक नहीं है। कुंडली मैच करवाना बड़ा अनिवार्य होता है। मैं थोड़ा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि कुंडली मैच करवाना, जब हम कहते हैं कि मैट्रिमनी शादी के लिए कंपैटिबिलिटी चेक के लिए हमने 2 कुंडलियाँ मैच कराई है, तो मोटा-मोटा क्या मैच कराते हैं यहाँ पर हमें समझना होगा कि हुँ, पहले तो विवाह क्या है? बाय रिमूविंग all the filters, all patriarchy, matriarchy, feminism biases, cultural, social biases, religious biases, let's understand what marriage is. Astrologically, marriage is union of two individuals for cohabitation with romantic and sexual attachment for the desire of having a family, for having kids together. हुँ, हुँ। When two individuals of opposite gender romantically decide to cohabitate with each other with certain promises of exclusivity, loyalty, respect and all, with desire to have babies, हुँ, हुँ। is the institution of marriage. Over here, see, please understand, marriage is not an institution to put a framework to a romantic couple. जी। The objective of having the framework of marriage is for better upbringing and nourishment of the kids who are born from the wedlock, हुँ, so that our cultural continuity, family institution can prosper, so that the story of civilization can go on. Marriage is primarily about how a family would function revolving around a couple, and how nourishment, sanskar, education, skills would be imparted to the kids born out of that wedlock. When we match two different horoscopes for matrimonial compatibility, हुँ, हुँ। we first of all have to check how much romantically two partners are compatible. हुँ, हुँ। To get into little bit of, though I generally refrain from making academic discussions over such shows. I think academic discussions are only meant for classrooms, but I'll just touch the basic, the very basic framework Framework। of how astrology and marriages work. हुँ, हुँ। When we have to check compatibility of two individuals for matrimonial alliance or romantic alliance, हुँ, हुँ। first of all, we need to see how much mutual romance or love the two individuals will have for each other, the romantic attachment, the romantic attraction. हुँ, हुँ। Now, this particular symphony of romance love is seen from fifth house of an individual chart, हुँ, जिसको हम पंचम भाव बोलते हैं। इंग्लिश एस्ट्रोलॉजी में, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में फिफ्थ हाउस बोल देंगे। इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हाउसेस नहीं होते, भाव होते हैं। हम इसे प्रेम भाव बोलते हैं। प्रेम, लव एक भाव होता है ना। तो सी, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर डिस्कशन टुडे, मैट्रिमनी, प्रेम भाव और प्रेम हुँ। which is under consideration is romantic prem which we feel for our spouse. प्रेम तो हमें अपने मम्मा से भी होता है, पापा से भी होता है, भाई बहनों से भी होता है। वैसे ही हमें अपने स्पाउस, हुँ, अपने पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से भी प्रेम होता है। वो जो प्रेम है, हम उसकी यहाँ बात कर रहे हैं। इसे मैप करा जाता है कुंडली के पंचम भाव से, फिफ्थ हाउस। अब देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी जैसे कि जो प्रेम भाव है, इसे आप 5 साल के लिए चेक करें। जब अलायंस हो रहा है, वहां से 5 साल तक चेक करें। हुँ, हुँ। 5 साल में अगर इसमें कोई मेजर रेड फ्लैग नहीं दिख रहा, रेड फ्लैग का क्या मतलब हुआ कि जब विवाह हो रहा है या संबंध स्थापित हो रहा है, जिसे हम रोका मान सकते हैं या एंगेजमेंट मान सकते हैं, या एक लव मैरिज के अंदर व्हेन अ कपल स्टार्ट्स डेटिंग, तो एक इंसान के तो जीवन में 3 साल 4 साल तक प्रेम भाव बहुत अच्छा, ऑस्पिशियस, शुभ, एक्साइटमेंट के साथ दिख रहा है। पर दूसरे व्यक्ति के जीवन में केवल 6 महीने या 8 महीने के लिए ही दिख रहा है। हुँ, हुँ। इसका क्या मतलब हुआ? वन ऑफ द पार्टनर विल लूज द रोमांटिक अट्रैक्शन और इन्वॉल्वमेंट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसे हमें चेक करना है प्रेम भाव को 5 साल तक।
कि अगर 5 साल तक कोई मेजर रेड फ्लैग नहीं आता, तो ये कपल अच्छा कपल है, दे आर गुड टू बी विथ ईच अदर फॉर रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। अब इसके साथ सिमरन, देखिए, नो मैटर हाउ मच लव यू हैव फॉर अ पर्सन, हुँ, हुँ। स्टेइंग विद दैट पर्सन, कोहैबिटेशन, एक छत के नीचे एक घर शेयर करना इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। हुँ, हुँ। हो सकता है कि आपके कोई बेस्ट फ्रेंड है, आप उनको बड़ा प्यार करती हैं, आपकी बेस्ट फ्रेंड आपके साथ बड़ा अच्छा समन्वय बनाती हैं, पर आप उनके साथ फ्लैटमेट बन जाओ या हॉस्टल में साथ रहने लग जाओ, जी। डिफरेंट बॉल गेम, एकदम से तनाव आने लग जाता है। इवन टू बेस्ट फ्रेंड्स आर ऑफन नॉट गुड फ्लैटमेट्स। येस। कभी-कभी हमें अपने भाई-बहनों, परिवार के साथ भी एक साथ जब हम रह रहे होते हैं, हुँ, कुछ तनाव आने लग जाता है। कोहैबिटेशन इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑलटुगेदर। ये होता है सप्तम भाव, पार्टनरशिप। एक मैरिड कपल क्या करता है? वो एक घर को शेयर करता है। मैरिज हुँ, इज़ अ डोमेस्टिक पार्टनरशिप। ये जो सप्तम भाव है, इससे हम 2 व्यक्तियों के परस्पर एक घर को शेयर करने की जो एबिलिटी है, जिसे हम कोहैबिटेशन कहते हैं, उसे हम इससे मेज़र करते हैं, मापते हैं। हुँ। कैसे मापते हैं? वो बड़ा एकेडमिक क्वेश्चन है कि सप्तम भाव का अधिपति कौन है? इस पे दृष्टि किसकी पड़ रही है? गोचर में कौन-सा ग्रह यहाँ पर है? नक्षत्र क्या है? वो आपकी वगैरह-वगैरह, वो कैलकुलेशंस बड़ा जो एके आप करते हैं जी, जी, जी। मैथमेटिकली उस पे डिपेंड करता है। जी, 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 वो काफ़ी एकेडमिक पार्ट है। अगेन वो तो एकेडमिक पार्ट तो क्लासरूम में डिस्कस होते हैं, जी, टीवी पे नहीं होते। ऑफ कोर्स। तो मैं केवल ब्रीफ बता रहा हूँ, तो ये सप्तम भाव चेक करा जाता है। इस सप्तम भाव को भी हम कितने समय के लिए चेक करते हैं? केवल 7 साल के लिए, हुँ, कि अगर किसी एक कपल का पहले 7 साल हुँ, सप्तम भाव कोहैबिटेशन के अंदर कोई बड़ा रेड फ्लैग नहीं है। हुँ, अगेन रेड फ्लैग कैसे चेक करेंगे? स्पेसिफिक मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस एल्गोरिथम है। हुँ, कि सप्तम भाव में 7 साल तक कोई बड़ा रेड फ्लैग नहीं है, तो हम अज़्यूम कर लेंगे कि अब ये दोनों एक-दूसरे के साथ रह सकते हैं। इन्हें एक-दूसरे के साथ आदत पड़ गई, ये एक-दूसरे से घुल-मिल गए। जी। पर ऐसा है कि किसी एक की कुंडली में तो 5-6 साल तक सप्तम भाव बहुत अच्छा चल रहा है, पर दूसरे व्यक्ति की कुंडली में केवल कुछ महीनों के लिए अच्छा, और बाद में उसमें सिग्निफिकेंट तनाव है, एंग्ज़ायटी है। इसका मतलब ये कपल काफ़ी लड़ रहा है आपस में। हुँ, अगर पहले 7 साल कोई तनाव नहीं है, तो इसका मतलब अब इन्हें आदत पड़ गई है एक-दूसरे के साथ, हुँ, अब ये जीवन व्यतीत कर लेंगे। देन वी हैव 9th हाउस, हुँ, नवम भाव जिसे हम कहते हैं। इससे प्रोस्पेरिटी, प्रोजेंसी देखी जाती है। देखिए सिमरन, मैट्रिमोनियल व्यवस्था, मैरिज हुँ, जो विवाह पद्धति है, हुँ। वो बनी है एक कपल के साथ रहने से उत्पन्न हुए बच्चे के लिए अच्छे अच्छे एक एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को देने के लिए, ताकि उसकी अपब्रिंगिंग अच्छे से हो पाए, उस पे हुँ, माताजी पिताजी के संस्कार, दादा दादी नाना नानी के संस्कार आ पाए, हुँ, उसको एक अच्छा, जिसे हम कहते हैं ना कि इवन हेल्थ वाइज एक अच्छा पोषक बचपन मिल पाए, जहाँ पे उसको अच्छी डाइट मिल रही है, अच्छी एजुकेशन मिल रही है। अब जो बच्चा है वो अपने माँ बाप के मन से सीखेगा। एक बच्चा, आपने देखा होगा, अपनी मदर को, फादर को कॉपी करता है। जी, छोटी एज में, टॉडलर एज में भी कॉपी करता है। उनकी आदतें आ जाती हैं, अरे ये तो अपने पापा पे गया है, अरे ये तो अपनी हुँ, मम्मा पे गया है, जी, क्योंकि वो कॉपी करता है। अब उस बचपन में बच्चा जब अपने माँ-बाप को कॉपी कर रहा है, माँ-बाप आपस में लड़ रहे हैं, उनके मन में तनाव है, तो बच्चा उस तनाव को ही कॉपी करेगा। इसमें तो हमने सिमरन कई केसेस देखे हैं, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, कि वैवाहिक जीवन में माताजी, पिताजी, जो कपल है, ये बड़े भारी तनाव से जा रहा है अपने विवाह के कारण, और कुछ और 2-3 इंडिविजुअल कारणों के कारण। और इसी तनाव अवस्था में ये कपल फैमिली प्लानिंग करता है, और अब बच्चे को कुछ कॉग्निटिव इश्यूज आ गए, कुछ हुँ, साइकोलॉजिकल इश्यूज आ गए, ऑटिज्म देखा गया है। तो माँ बाप की जो मेंटल हेल्थ है, वो बच्चे के लिए बड़ी जरूरी है। अब जब हम नवम भाव को देख रहे हैं, इसे कम से कम 9 साल के लिए देखना है। इसे 9 साल के लिए कब से देखना है? जब वो कपल फैमिली प्लानिंग कर रहा है, तब से, विवाह से नहीं। हो सकता है कि कोई कपल फैमिली प्लानिंग विवाह के 2 साल 3 साल बाद कर रहा है, वहां से अगले 9 साल हमने देखने हैं कि इस समय अवधि में ये कपल कैसा है, जी, इनकी अपनी मानसिक स्थिति कैसी है, पारिवारिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है। हुँ, जितना मर्ज़ी प्यार-मोहब्बत हो, घर चलाने के लिए पैसा लगता है। जी, अगर किचन में राशन नहीं है, तो कोई रिलेशनशिप नहीं चल पाता। 9th हाउस बड़ा सिग्निफिकेंट हाउस है, क्योंकि इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न भी है। अब देखिए, 9th हाउस इज़ ऑल्सो हाउस ऑफ योर प्रोफ़ेशन। एक कपल है, शादी हुई, शादी के बाद आपके प्रोफ़ेशन पे, आपके
नए जीवन का जो आपका वैवाहिक दाम्पत्य जीवन है, इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। हुँ, यू कैन नॉट कीप योर प्रोफेशनल लाइफ अनइम्पैक्टेड फ्रॉम मैट्रिमनी। जब आपका विवाह हुआ, आपने घर अपना एक अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ शेयर करना शुरू करा, 2 परिवार बिग आपस चेंज। में मिले, बिग चेंज, इट हुँ, इम्पैक्ट्स योर प्रोफेशनल लाइफ। अब कई जगहों पर देखा जाता है कि a lady is expected to willfully, take up the role of being a homemaker। यस। स्पेशली जब उन्होंने अपनी फैमिली प्लानिंग करी, उस पॉइंट से एटलीस्ट 1.5-2 साल तक मैटरनिटी लीव होती है व्हेन द बेबी इज ऑन मदर्स फीट, तो लेडी टेक्स अप द रोल ऑफ अ होम मेकर। जी। यहाँ पर इनका प्रोफेशन होम मेकर हो गया। लेट्स से a lady decides to quit her computer science job, हुँ, टेक्स maternity लीव एंड गोज ऑन फॉर फैमिली प्लानिंग। तो ये जब उन्होंने मैटरनिटी लीव ली, एक होम मेकर मदर हुँ, की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो उसको हम ज्योतिष में जॉब ट्रांजिशन की तरह देखेंगे कि एक आईटी प्रोफेशनल से अब ये होम मेकर बनी। या मान लीजिए किन्हीं व्यक्ति ने यहाँ पे शादी के बाद सीधे होम मेकर का रोल ले लिया, हुँ, तो ये उनके करियर में ब्रेक नहीं है। हुँ, होम मेकिंग इज़ अ प्रोफ़ेशन। जी। आजकल तो कई रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ स्टडीज़ हुई हैं, जिसमें कहा जाता है कि 40-45% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी अर्थव्यवस्था जो है वो इसलिए है क्योंकि गृहिणियों ने मोर्चा सँभाल रखा है। हुँ, एक व्यक्ति अगर बाहर जाकर काम कर रहा है, राइट, काम-धंधा कर रहा जी। है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी धर्मपत्नी ने घर सँभाल रखा है। They say no 40-45% of the global GDP is because of the housewives। हुँ, 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 तो वो होम मेकर लेडी का प्रोफेशन हो गया। हुँ, अब यहाँ क्या देखने को मिलता है कि किन्हीं ने कुंडली मैच कराई, देखा कि अरे लड़के का करियर तो 9-10 साल के लिए बहुत अच्छा जा रहा है, जैसे आप लेडी लक एक बात कर रही थी। पर लड़की के करियर में ना 6 महीने बाद ही मेजर अशुभ चेंजेस दिख रहे हैं और यहाँ से फिर वो 3 साल तक अपने करियर में बड़ी परटर्ब्ड है। तो हुँ, वो पैट्रियार्की और मैस्कुलिनिटी, हाइपर मैस्कुलिनिटी का हुँ, फ़िल्टर लगा लेना है और कह देना है तो क्या हुआ जी, इन्होंने तो घर ही सँभालना है। जी, कोई बात नहीं, प्रोफ़ेशन में दिक्कत आ गई तो क्या हुआ, ये तो हाँ, गृहिणी है, घर ही सँभालेंगी। अरे! बीइंग होममेकर इज़ हर करियर नाउ। इट हुँ, मीन्स कि वो 6 महीने बाद एज़ अ होममेकर हाउसवाइफ़ फ्रस्ट्रेट हो गई हैं। सो दिस इज़ अ बैड मैच। हुँ, 9th हाउस को बहुत अच्छे से हमें मैच करवाना होता है। जी, फिर इसके बाद 12th हाउस आता है। 12th हाउस इज़ ए conjugal happiness, how much a couple is intimately, happily involved with each other, how much they are respecting exclusivity of their marriage, and it also represent in-laws। हुँ, इन-लॉज़ यहाँ क्यों महत्वपूर्ण है? आजकल हम देख रहे हैं कि एक जॉइंट फैमिली से हम धीरे-धीरे 90s के डेकेड में न्यूक्लियर फैमिली की तरफ आने लगे और अब न्यूक्लियर फैमिली से हम सिंगुलर फैमिली पे आ गए हैं। हुँ, सिंगुलर फैमिली कुछ होता ही नहीं है। फैमिली तो केवल जॉइंट फैमिली होती है। इवन न्यूक्लियर फैमिली हुँ, इज़ अ मेजर डिग्रेशन और मेजर डेविएशन और फॉल हुँ, फ्रॉम द फैमिली इंस्टीट्यूशन। न्यूक्लियर फैमिली को भी अगर आपने अब थोड़ा-सा छोटा कर दिया तो द फैमिली इंस्टीट्यूशन हैज़ कोलैप्स्ड। हुँ, on which the entire civilization prospers। जी, वो हम सिविक्स में पढ़ते थे ना, फैमिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी। येस, अगर फैमिली इंस्टीट्यूशन ही खराब हो गया, हिल गया, डिस्टॉर्ट हो गया, हुँ, तो अब सभ्यता समाज इसके ऊपर नहीं टिका रह पाएगा। अंडरस्टूड, ये जो 12th हाउस है, इसमें हमें इन लॉज का आपस में म्यूचुअल रिलेशन देखना है कि लड़के का रिलेशन उसके इन लॉज के साथ कैसा रहेगा और लड़की का रिलेशन उसके हुँ, इन लॉज के साथ कैसा रहेगा। हुँ, क्यों? क्योंकि देखिए, बचपन में हमारे माँ बाप हमें नरिशमेंट देते हैं। वो अपने जीवन में बड़े-बड़े सैक्रिफाइस करते हैं, बड़ी-बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं सो दैट वो अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य दे पाएँ, एक अच्छा बचपन दे पाएँ। फिर जीवन तो जीवन है, बचपन के बाद जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा आता है, यही नियम है। अब हमें बचपन में नरिशमेंट अपने माँ-बाप से मिल गया। हुँ, अब जब हम बड़े हुए, हमारा विवाह हुआ, वो बूढ़े हो गए। अब हमारा कर्तव्य है कि हम उनको बुढ़ापे में वो नरिशमेंट जो उन्होंने हमें बचपन में दिया था, वापस दें। जी, क्योंकि अब इस अवस्था में आते-आते हम बड़े हो चुके हैं, हमारे साथ हमारा स्पाउस होता है, तो हियर इट इज़ इम्पोर्टेंट कि उस स्पाउस की वजह से जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने माँ-बाप को एक अच्छा बुढ़ापा देना, हुँ, पूरा हो रहा हो। द स्पाउस शुड बी एबल टू कंट्रीब्यूट इन बेटर ओल्ड एज ऑफ द पेरेंट्स। हुँ, इफ द स्पाउस इज नॉट एबल टू contribute in better old age of the parents, then the marriage is not advisable। हुँ, हुँ, यहाँ पर हमें समझना बड़ा ज़रूरी है। आजकल बॉलीवुडाइज़ेशन, जी, शादी को हमने बस 2 इंडिविजुअल्स का रोमांस मान लिया कि जी, अरे बड़ा प्यार है जी, हमें तो बड़ा सेक्सुअल जो सेक्सुअल, होता है रोमांटिक, अट्रैक्शन, बस जी, केवल वो मान लिया। जी, जी, जी,
वो तो एक व्यक्तिगत अफेयर है। योर सेक्सुअल डिज़ायर और रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट इज़ एक्चुअली योर प्राइवेट अफेयर। हुँ, वी डोंट नीड एन इंस्टीट्यूशन टू गाइड दैट। जी। मैट्रिमोनियल इंस्टीट्यूशन इज़ मेड फॉर द फैमिली। हुँ, एक कपल जब कोहैबिटेट करने लगेगा रोमांटिक इंटेंशन के साथ, तो दे विल लाइकली हैव किड्स यस, एंड दे विल आल्सो गेट इन्वॉल्व्ड इन ईच अदर्स फैमिली लाइफ। जी। उसकी मैनेजमेंट के लिए विवाह संस्थान का हुँ, एवोल्यूशन हुआ है धीरे-धीरे कालांतर में। हुँ, यहाँ पर यदि एक शादी से वर-वधु अपने-अपने सास-ससुर को या एक दूसरे के माँ-बाप को हुँ, एक बेहतर बुढ़ापा, बेटर ओल्ड एज नहीं दे पा रहे, हुँ, then the marriage is not advisable no matter how much mutual attraction the couple has। हुँ, आप अपनी सिर्फ म्यूचुअल अट्रैक्शन के चक्कर में अपने माँ-बाप को बुढ़ापे में अगर छोड़ दो, तो क्या फ़ायदा है ऐसे परिवार का? हुँ। परिवार व्यवस्था ही बच्चों का अच्छा बचपन और ओल्ड एज केयर के लिए बनाई गई है। सर मेरा एक फ़ॉलो-अप क्वेश्चन है, आपने बहुत बार मेंशन किया प्रेम भाव, लव। जी। व्हाट इज़ लव सर? प्रेम तो एक ऐसा तत्व है जो पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है। हुँ, एक ऐसा तत्व है जिसे ना तो कभी खोया जा सकता है, ना भुलाया जा सकता है। हुँ, ये हमारे जीवन में बार-बार आता रहता है। सबसे पहले जैसे ही हम जन्म लेते हैं, ये हमारे मूल स्वभाव से हुँ, अंतस्थ भाव से संफुटित होता है और हमें अपनी माता से प्रेम हो जाता है। हुँ, जैसे ही हमारा जन्म होता है, हमारी माँ हमसे प्रेम कर लेती है। जी, क्या होता है वो प्रेम? माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है अनकंडीशनली। बिल्कुल। बच्चा गोरा है, काला है, सांवला है, छोटा है, लंबा है, माँ को प्रेम हो जाता है। बच्चा स्वस्थ है, अस्वस्थ है, माँ को उसी क्षण बच्चे से प्रेम हो जाता है। वो अनकंडीशनल होता है प्रेम। ये बच्चा आगे चल के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, माँ को फ़र्क नहीं पड़ता, उसे बच्चे से प्रेम रहता है। ऐसा ही प्रेम बच्चे को भी माँ से हो जाता है। हुँ, माँ कैसी हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटी हो, लंबी हो, काली हो, गोरी हो, हमें क्या, माँ तो माँ होती है, हमें माँ से प्रेम हो जाता है। जी, इसी प्रकार आपने देखा होगा बचपन में हम दोस्त बनाते हैं। हुँ, हम छोटे-छोटे होते हैं, हम दोस्त बनाते हैं। वैसे ही ज्योतिष में एक मित्र भाव भी होता है, जो मित्रता है ना, हुँ, ये जिसको हम फ्रेंडशिप कहते हैं, मित्रता। हमारा मूल स्वभाव है, हम मित्र बनाते हैं। हुँ, ये ह्यूमैनिटी का हमारी स्पीशीज़ का मूल स्वभाव है कि हम मित्र बनाते हैं। ये भी एक ज्योतिष में एक बड़ा भाव माना जाता है, मित्र भाव। हुँ, हम बचपन में फिर मित्र किसे बनाते हैं? जिनसे हमें प्रेम होता है। प्रेम किससे होता है? जिनके साथ हमें खेलना पसंद है। हुँ, हम बचपन में दोस्त कौन बनाते हैं? जिसके साथ हम खेल सकें। खेलना क्या होता है? रिक्रिएशन, एक्सप्लोरेशन। अगर आप छोटे बच्चों का खेल देखोगे, बड़ा एक्सप्लोरेटिव, क्यूरियस खेल होते हैं उनके, हुँ, छोटे-छोटे किडी गेम्स जो होते हैं। हुँ, 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 वो हम किसके साथ बनाते हैं? मित्रों के साथ। मित्र कौन होते हैं? जिनसे हमें प्रेम होता है। जी, वैसे ही हमें अपने पिताजी से, दादा-दादी, नाना-नानी, कज़िन्स, भाई-बहन सबसे प्रेम हो जाता है। हमें अपने फ्रेंड से भी प्रेम होता है, अपने मित्रों से भी प्रेम होता है। उसी मित्रता में, उसी संबंध के अंदर जब रोमांटिक डिज़ायर आ जाए, हुँ, उसे हम हमारा जो रोमांटिक मैट्रिमोनियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रेम है, वो कह देते हैं। हुँ, हमें अपनी माँ से प्रेम होता है, हमें अपने प्रेमी से प्रेम होता है, माँ से भी प्रेम है, प्रेमी से भी प्रेम है, माँ से भी प्रेम अनकंडीशनल है, जिससे प्रेम है उसके लिए भी वो प्रेम अनकंडीशनल है। माँ हो, ना हो, अच्छी हो, बुरी हो, डाँटती हो, बात करती हो, ना करती हो, प्रेम रहता है। वो हो, ना हो, आपसे बात करती हो, ना करती हो, अच्छी हो, बुरी हो, प्रेम तो हमेशा रहता है। वो प्रेम है। हुँ, ज्योतिष में हम उस प्रेम को अनकंडीशनल लव की तरह देखते हैं। उसमें ना तो एक्सपेक्टेशंस आती हैं, ना उसमें रिवेंज आता है, ना उसमें सेल्फिशनेस आती है, ना सेल्फलेसनेस आती है, हुँ, हुँ, ना ग्रज आता है, ना कोई डिज़ायर आता है। जी, मैट्रिमनी जब हम देखते हैं, हुँ, तब हमने उसमें कंडीशंस अटैच कर दी। कोहैबिटेशन, लॉयल्टी, एक्सक्लूसिविटी, ओल्ड एज केयर फॉर पेरेंट्स, योर डिज़ायर टू हैव किड्स। प्रेम अनकंडीशनल है, पर विवाह कंडीशनल है। जी, विवाह अनकंडीशनल नहीं हो सकता। हुँ, वो है ही विवाह, वो पद्धति ही इसलिए बनी है क्योंकि उसमें कंडीशंस है। हुँ। प्रेम अनकंडीशनल रहता है। सर मैं एक फ़ॉलो-अप क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आपने बोला कि शादी के कंडीशंस होती हैं, ऑफ कोर्स। लाइक यू शुड हैव सेक्सुअल अट्रैक्शन, यू शुड हैव अ बॉन्ड, यू शुड हैव द लॉयल्टी, देयर इट इज़ मेड फॉर अ बेबी, नॉट फॉर 2 पीपल टू बी टुगेदर, बट फॉर दैट बेबी पार्ट एंड टेकिंग केयर ऑफ द पेरेंट्स, करेक्ट? फर्स्ट थिंग सर, अ, किसके पेरेंट्स? गर्ल के पेरेंट्स, दोनों। बॉयज़ के पेरेंट्स? मैं स्पाउस, वर-वधु यूज़ कर रहा हूँ, दोनों। कोई पैट्रियार्की, मैट्रियार्की नहीं है। ठीक है। दोनों के पेरेंट्स, दोनों के परिवार।
सो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गाय एंड द गर्ल Yes. कपल, एक सबका ध्यान रखना है जो जी ओल्ड हो गए हैं उनकी फैमिली में, मतलब पेरेंट्स का। जी करेक्ट। एंड बेबी इज द कंडीशन फॉर समवन टू गेट मैरिड, नो कि जी, mutual romance, mutual attraction, ठीक है। desire to have life with each other हाँ, is the condition for two people to get married. ठीक है। But if people are romantically involved, staying together, हुँ, by biology, they will give birth. हुँ। The समटाइम जी, consequence of this arrangement gives birth. व्हाट इफ पीपल आर मैरिड बट दे डोंट वांट टू हैव अ बेबी? They did not need to marry, then why did they marry? आवश्यकता ही क्या थी? ओके। मतलब देयर इज नो प्रोहिबिशन, हुँ, पर फिर आवश्यकता क्या थी? यू आर नॉट एलिजिबल, कर ली कोई बात नहीं, पर जरूरत ही क्या थी फिर? दे वर इन लव, दे तो वर साथ रहते अट्रैक्टेड। रहो, एक दूसरे का ध्यान रखो, बुढ़ापे तक एक दूसरे के साथ लॉयल्टी रखो। शादी तो करी जाती है परिवारों को मिक्स करने के लिए। हुँ, दो परिवारों का संगम होता है शादी। जी, बच्चे हो ना हो, कई कपल ऐसे होते हैं जो जिनके बच्चे नहीं हो पाते। जी। कई कपल ऐसे होते हैं जो शादी के बाद विभिन्न कारणों से डिसाइड करते हैं कि उन्हें बच्चे नहीं करने, हुँ, पर परिवार तो मिल गए ना उनके, वो एक दूसरे बिल्कुल। के माँ बाप का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे के कल्चर के साथ इंटरमिंगल हो जाते हैं। अगर वो सब नहीं करना तो फिर विवाह कर ही क्यों रहे हो? इसमें सिमरन, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक 1930, आई मे बी रॉन्ग हियर, सो हुँ, प्लीज पार्डन मी इफ माय इंफॉर्मेशन इज इनकरेक्ट, बट आई थिंक 1930-31 में इट वाज, आई थिंक, वन ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑफ द देन ब्रिटिश इंडिया, जिसने बहुत सारी अलग-अलग विवाह पद्धतियाँ प्रचलित होती थी। गंधर्व विवाह एक होता था, हुँ, इस तरह के बहुत सारे विवाह पद्धतियाँ प्रचलित थीं। उनके ऊपर बैन लगा दिया और अभी जो करंट हमारी एक जो वो 7 फेरों वाली विवाह पद्धति होती है, उसको मान्यता दी, जो आज हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ विवाह पद्धति है। हुँ। और अगर हम ग्रंथों में जाएँ तो उसमें तो बहुत सारे अलग-अलग तरह के ना विवाह पद्धतियों की चर्चा आती है। इट मेक्स सेंस। सो देयर इज़ आल्सो समथिंग कॉल्ड गुण मिलाना, 36 गुण, उसका क्या रिलेशन है एस्ट्रोलॉजी में और उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी शादी में? देखिए, मैं आपको एक जी, एग्ज़ाम्पल की तरह एक्सप्लेन करता हूँ। जी। लेट्स से अरेंज्ड मैरिज सेटअप और अ लव मैरिज सेटअप, बोथ द केस सिनेरियोज़। अरेंज्ड मैरिज में क्या होता है कि हम अपने जान-पहचान के सर्कल में, सोशल सर्कल में, रिश्तेदारी में रिश्ते देखते हैं। हुँ, हुँ। और लव मैरिजेस में क्या होता है कि हम अपने सोशल सर्कल में वी डेवलप इमोशंस फॉर समवन, वी आस्क आउट द पर्सन एंड देन वी स्टार्ट डेटिंग एंड देन वी टेक इट टू हुँ, द नेक्स्ट लेवल, मैट्रिमनी। हुँ, उसमें आजकल वो देखा जाता है, वो एप्स वगैरह होती हैं, हुँ। डेटिंग एप्स वगैरह होती हैं, राइट लेफ्ट स्वाइप करते हैं लोग। वैसे ही मैट्रिमनी एप्स भी होती हैं जिसमें जी, प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, आप चूज करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ जेनरिक फिल्टर्स डालते हैं, जनरल फिल्टर्स डालते हैं। अरेंज मैरिज में भी की चीज़ें, हमारे लड़के की उम्र इतनी है, वो यहाँ रहता है, इससे कुछ मिलता जुलता एज ग्रुप में इस शहर में रिश्ता देखो। इसमें हमारे कुछ रिलीजियस या कल्चरल या कास्ट सेंटिमेंट्स भी आते हैं। हुँ, हुँ। उसी तरह डेटिंग के लिए भी हम एक हमारे कुछ जो प्राइमरी फिल्टर्स होते हैं, सबसे पहले हम वो लगाते हैं। ठीक है। हैं? ये जो 36 गुण मिलाना है, गुण मिलापक सारिणी, ये केवल एक प्राइमरी फिल्टर है। इट इज नॉट अ डिसाइसिव फिल्टर। ये केवल एक बेसिक प्राइमरी फिल्टर है। हुँ, 36 गुण मिलाने में हम कुछ अलग-अलग पैरामीटर्स के ऊपर स्कोरिंग करते हैं, रेटिंग करते हैं। और टोटल आपका 36 में से कितने गुण मिले ये देखते हैं। मान लीजिए कि किसी के 36 में से 32, 33 गुण मिल गए। हुँ, दैट डज़न्ट मीन दैट दिस कपल विल एंड अप हैविंग अ गुड मैरिड लाइफ। ये केवल प्राइमरी फिल्टर लगा है। हुँ। इसकी 36 गुण मिलाने की ओवरऑल वेटेज हुँ। पूरे कंपैटिबिलिटी चेक में 15-20% होती है केवल। व्हिच हाँ, मीन्स कि लेट्स से अगर किसी के 36 में से 36 गुण मिले हैं, जी, तो आउट ऑफ 100 दे हैव ओनली स्कोर 20 अभी। 80 मार्क्स तो बाकी पैरामीटर्स से आएँगे जिसको हम कुंडली मिलाना कहते हैं। जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, 5th हाउस, 7th जी, जी। हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस की सिम्फनी। ओके। मान लीजिए किसी के 36 में से 5 गुण ही मिल रहे हैं, तो उसका मतलब है 20 में से उनके 5 मार्क्स आए हैं, 4 मार्क्स आए हैं। दिस ऑल्सो डज़ नॉट मीन दैट द कपल कैन नॉट बी एडवाइज्ड टू मैरी। बाकी जो 80% वेटेज है, हो सकता है वहाँ पे वो डिस्टिंक्शन स्कोर करें, वहाँ पे उनके 70 आ जाएँ, तो हुँ, ओवरऑल उनका 100 आउट ऑफ 75 बन गया। हुँ। जो ये गुण मिलाना है, ये केवल एक प्राइमरी बेसिक फिल्टर है। इट इज़ नॉट द डिसाइसिव फिल्टर।
गुण अगर बहुत अच्छे मिल रहे हैं, जी। दैट मीन्स आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन, एस्ट्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन उस चार्ट की कर सकते हैं। गुण नहीं मिल रहे हैं, हुँ, तो भी आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन उन चार्ट्स की करें। हुँ, क्या पता कुंडली बहुत अच्छी मिल रही हो, और जो हुँ, बहुत कॉमनली देखा जाता है कि गुण अच्छे नहीं मिल रहे, पर अदरवाइज़ कुंडलियों का मैच बहुत अच्छा बन रहा है। हुँ। इसमें फिर गुण मिलाने में या फिर कुंडली मिलाने में कुछ रेमेडीज़ भी होती हैं। जी, रेमेडियल जी, जी। एस्ट्रोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मान लीजिए कि कुंडली मैच करवाने में हुँ, पंचम भाव, सप्तम भाव में कोई मेजर क्रिटिकल एरर नहीं आ रहा, पर कोई छोटे-मोटे प्रॉब्लम दिख रहे हैं, वो मैन्यूवरेबल है वो। एक अच्छे ज्योतिष जिनको 10-15 साल का ज्योतिष का एक्सपीरियंस है, जी। वो आराम से यहाँ पे एक रेमेडी डिवाइस कर पाएँगे। रेमेडी डिवाइस करना बड़ा गेम थ्योरी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है कि वो यहाँ पे रेमेडी डिवाइस कर पाएँगे। आपको कुछ लाइफ़स्टाइल मैन्यूवरिंग, हुँ, लाइफ़स्टाइल चेंजेस, जेमस्टोन इत्यादि कुछ उपाय बताएँगे, टाइमिंग ऑफ सर्टेन इवेंट के उपाय बताएँगे, हुँ। और आप उस अशुभ समय को बहुत ईज़िली एज़ अ कपल मैन्यूवर कर पाएँगे। यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट है सिमरन, देखिए मैट्रिमनी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ लाइफ। इट कैन ईदर मेक योर लाइफ फैबुलस, और इट कैन मेक योर लाइफ एल डिजास्ट्रस। या It is very important that you really invest your time and resource in astrological compatibility check for matrimony. इसको आप एक साइड एक्सरसाइज या सुपरफिशियली करें ना, आप इसमें एक अच्छे ज्योतिष से जिन्हें कम से कम 10-15-20 साल का एक्सपीरियंस है, उनसे आप कंसल्टेशन लें। जैसे होता है ना कि हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो हम देखते हैं एमबीबीएस, एमडी, 4-5 डिग्रीज होनी चाहिए, हुँ, 5-10-15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सर्जन हम उनको अच्छा मानते हैं जो कई सालों से जी, प्रैक्टिस कर रहे हो। उसी तरह से ये बहुत लाइफ के क्रिटिकल डिसीजंस हैं। जी, ये आप वो यूट्यूब एस्ट्रोलॉजर वगैरह से ना करें, एक अच्छे हाँ, ज्योतिष से। अच्छे ज्योतिष यहाँ कौन हुए जिन्हें कम से कम 5-10-15 साल का एक्सपीरियंस है, जो 10-15 साल से लोगों को कंसल्ट करते आ हुँ, रहे हैं, जिन्होंने 5-10 साल की कम से कम पढ़ाई करी है, जी, उन्हीं की एडवाइस पे अपने लाइफ डिसीजन लें, वरना अपने इतने इंपॉर्टेंट लाइफ डिसीजन कैजुअली ना लें। हुँ, अगर अब कुंडली आपकी मैच नहीं कर रही, छोटे-मोटे एरर हैं, कोई मेजर रेड फ्लैग नहीं है, तो एडवाइसेज़ के साथ, हुँ। रेमेडीज़ के साथ भी वो विवाह करा जा सकता है। सर तो आप ये बता रहे हैं कि 36 गुण मिलना इज़ नॉट द ओनली फैक्टर कि अगर आपके 36 में 30 गुण, 32 गुण जितने भी मिले, डज़ नॉट गारंटी कि शादी अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। कुंडली मिलना इज़ ज़रूरी, करेक्ट? एब्सोल्यूटली, ये 36 गुण मिलना तो केवल ओवरऑल 20% वेटेज रखता है। हुँ, 80% वेटेज तो कुंडली मिलने से आएगी। हुँ। कई सारे ऐप्स इस पे बड़ा बिज़नेस प्ले कर रहे हैं। दुकानें हैं, चलने दो जी सब, हुँ, दुकान चलती रहनी चाहिए। हुँ, पर आपके जीवन का ये बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है। एग्ज़ैक्टली। आप बड़ा सोच समझ कर ही निर्णय लें। हुँ, मैट्रिमनी जो डिसीजन है वो एक सोच समझकर अच्छी एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइजरी पर ही लें। जैसे होता है ना, शादी में हम लोग लाखों खर्च देते हैं बैंक्वेट हॉल बुक कराने में, हम लाखों खर्च देते हैं वेडिंग आउटफिट बनाने में। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन में प्लीज कंजूसी ना करें। स्पेंड अ गुड अमाउंट, गो टू अ गुड एस्ट्रोलॉजर, टेक अ रेलेवेंट एडवाइजरी। फेयर इनफ लाइफ डिसीज़न है, ऐसे नहीं लिए जाते हैं। जब आप कई लाखों वेडिंग आउटफिट पे खर्च कर सकते हैं, तो 10-20 हज़ार रुपए एडवाइजरी के लिए खर्च करें। सही बात है। करेक्ट लाइफ पार्टनर किसी भी बैंक्वेट हॉल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्युटली। एग्ज़ैक्टली। सर जो हम पहला डिस्कशन कर रहे थे, उसमें आपने बोला कि करेक्ट पार्टनर, लाइफ पार्टनर, स्पाउसेस। आई वांट टू नो कि क्या फ्रेंड्स भी स्पाउस हो सकते हैं? ओह यस, योर मोस्ट कंपैटिबल स्पाउस, सबसे अच्छा स्पाउस, जीवन साथी आपके मित्र ही होंगे। इफ यू कैन फॉल इन लव विद समवन हु इज आल्सो योर वेरी गुड फ्रेंड, हुँ, बेस्ट केस सिचुएशन, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो बेस्ट केस सिचुएशन होती है। मित्र हैं तो उसमें मित्रता तो होती है, अनकंडीशनल है। हम मित्र इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम खेल सकें। हुँ, वो हुँ। कहते हैं ना सिमरन कि बचपन में हम मित्र बनाते हैं खेलने के लिए, और फिर धीरे-धीरे हम बड़े हो जाते हैं, खेलना-कूदना बंद कर देते हैं, अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, और फिर कहते हैं, यार वो दोस्त दोस्त नहीं रहे, दोस्त नहीं बदले, हम बदल जाते हैं, हम खेलना बंद कर देते हैं। हुँ, बचपन में तो 2 बच्चे आपस में खेलते हैं, लड़ते, झगड़ते हैं, पर दोस्त रहते हैं। जी। हम ये खेलना, अपने मन की ये
जो एक सरल भाव है ना, हम रिक्रिएशन ढूँढते रहते हैं, वेकेशन पे जाओ, ये जाओ, वो करो रिक्रिएशन के लिए। एक छोटे बच्चे को देखो, वो केवल अपने बचपन के खेल-कूद में ही रिक्रिएशन ढूँढ लेता है। हुँ। उसको केवल वहाँ पे कंपनी चाहिए होती है, एक दोस्त चाहिए होता है, एक मित्र चाहिए होता है। वो मित्र जिसकी कंपनी में ही आप, जिसके होने से ही आप एक अच्छे से स्टेट में आ जाओ, जैसे हम कहते हैं ना वाइब मैच कर रही है, डज़न्ट मैटर आपका फ्रेंड आपके साथ है या नहीं है, जस्ट थिंकिंग अबाउट द फ्रेंड ऑल्सो एक पूरा अच्छा-सा हो जाता है, फ़ील अच्छी आती है, फ़ील यू अच्छी फील आ जाती है, नाइस। वो दोस्त होते हैं। जी। यू थिंक अबाउट देम व्हेन यू आर ट्रबल्ड कि अरे! दोस्त है वो सँभाल लेगा, सँभाल लेगी। हुँ। ऐसे ही किसी दोस्त को अगर आप रोमांटिक पार्टनर बना पाएँ, नथिंग लाइक इट, बेस्ट केस सिचुएशन। वंडरफुल। सर तो जैसे अगर हमारी कोई फ्रेंड है एंड वी थिंक ऑफ देम एज़ कि ये वी शुड गेट मैरिड, उस केस में भी कुंडली मिलाना इज़ इम्पोर्टेंट, करेक्ट? एब्सोल्यूटली। आप बेस्ट फ्रेंड के साथ घर में रह पाओगे, नहीं रह पाओगे, वो तो एक अलग बात है ना। ओके। तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि फ्रेंड्स का अलग सिनेरियो है, ठीक है, इफ यू आर फ्रेंड्स यू कैन बी स्पाउसेस बट एक छत के अंदर आपका क्या रिलेशन रहेगा वो कुंडली से आपको पता रहेगा। हुँ। एक बहुत अच्छा कपल हो सकता है जो मैट्रिमनी के लिए बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स लिए हुए हैं, पर वो आपस में अच्छे ट्रेडिंग पार्टनर नहीं हो सकते। शादी के बाद भी क्या एस्ट्रोलॉजी का रोल आता है मैरिज में? आप ज्योतिषीय रूप से समझ लें कि क्या ये समय फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छा है। कई बार ऐसा भी हुआ है क्या आपने मैरिज कंसल्टेशन के लिए बिल्कुल मना कर दिया हो कि हम नहीं करेंगे? तो ओके। कंसल्टेशन तो हम हमेशा दे देते हैं और वो कंसल्टेशन उस व्यक्ति को पसंद आए नहीं आए, अ बैड मैट्रिमोनियल डिसीजन कैन नॉट ओनली कॉज डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ। एक गुड एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइजरी फर्स्ट ऑफ ऑल टू आइडेंटिफाई कि मेरे लिए शादी का अच्छा योग कब है। अब अगर आपके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे बचपन में तो ये आपके जीवन का ट्रॉमा थोड़ी है। दवाई होती है बीमारियों की, दुख बीमारी नहीं होता। हस्बैंड वाइफ एंड किड्स विदाउट ग्रैंड पेरेंट्स इज नॉट इवन अ फैमिली। कि आप दोनों का सब कुछ सही है पर लॉन्जेटिविटी मैच नहीं हो रहा, लंबे समय तक विधवावस्था देखनी पड़ी। 36 गुण मिलाने पे ब्रेकअप पैचअप हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, जी। पेड़ से शादी हो रही है। कुंडली में काफ़ी चीज़ें पता लगती हैं। क्या ये भी पता लग सकता है कि फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी? Let's say if the analysis is indicating towards separation, then we don't hold back to our emotions. We advise separation. Astrology cannot tell you what would be the decision of this person. दिस एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो हेल्प इन रीमैरिंग? सर तो एक बात बताओ, लेडी लक जो होता है वो वाइफ की वजह से ही होता है? समाज नहीं कहता कि माँ को घर पे रुकना है बच्चे के पास। बच्चा माँ से अलग नहीं होना चाहिए। पेट्रियार्की टॉक्सिक है तो दोषी तो नवजात बच्चा है।